Hey you, make sure no one's watching you. Okay, sir. I'm going in. اس فائل میں ایک ایسی کہانی چھپی ہے جو پچھلے 70 سال سے لوگوں سے چھپائی جا رہی ہے. ایسی کہانی جو حکومت کو بدل دیتی ہے. ایسی سچائی جو لوگوں کا سوچنے کا نظریہ بدل دیتی ہے. مگر یہ سسٹم کب بنا، کس نے بنایا اور کیوں بنایا؟ کیا یہ سب ایک تصرف تھا یا پہلے سے تیار کی ہوئی وار پلاننگ؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کے بڑے فیصلے ہم جیسے لوگ نہیں کر سکتے. وہ ایسی جگہوں پر ہوتے ہیں، ایسے کمروں میں ہوتے ہیں جہاں پر نہ کوئی کیمراز ہوتے ہیں اور نہ کوئی عوام کی نگرانی. کیا یہ سب ایک قسم کی گلوبل سازش ہے یا صرف ایک افسانہ جسے لوگوں نے بڑھا چڑھا کر ایسا بیان کیا ہے؟ تو آج ہم اس پوری کہانی کو اصلی ڈاکیومنٹس، اصلی ایویڈنسز اور اصلی گواہوں کے ساتھ کھولنے جا رہے ہیں. جو کچھ آپ اس ویڈیو میں سننے والے ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دے گا. یہ سب کون چلا رہا ہے اور کہاں سے؟ دنیا ہمیشہ ایک قوت کے گرد گھومتی ہے، لیکن یہ قوت کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کون ہے اس سب کے پیچھے؟ یہ سوال انسانی تاریخ کے سب سے خطرناک سوالوں میں سے ایک سوال ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ملکوں کی حکومت اپنے فیصلے خود کرتی ہے تو ہم ایک بنیادی چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ سب فیصلے سٹیج کے پیچھے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے درمیان جو نیوز میں بھی نہیں آئے اور نہ کبھی کیمرے میں، لیکن ان کا ایک اشارہ پورے ملک کی قسمت کا رخ بدل دیتا ہے. اس لیے یہ ڈاکیومنٹری ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ہے جو ہمیں ان لوگوں تک لے کر جائے گی جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں. اس انویسٹیگیشن میں ہم ان لوگوں تک جائیں گے جو نہ کبھی کیمرے کے سامنے ہیں اور نہ نیوز میں، اور وہ پیچھے بیٹھ کر پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں. ون ورلڈ آرڈر، یہ ایک ایسا نام ہے جو اکثر لوگ سنتے ہی اس کو کانسپریسی بنا کر سائٹ پر رکھ دیتے ہیں. لیکن جب ہم پوری ٹائم لائن کو دیکھتے ہیں، جب ہم ڈیکیڈز پرانے ریکارڈز کو دیکھتے ہیں، جب ہم اس سارے گراؤنڈ ورک کو سمجھتے ہیں تو ایک ایسا پیٹرن ابھر کر آتا ہے جس کا کسی کو معلوم نہیں. ایک ایسا پیٹرن جو بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا جانے والا اور بہت ہی ایکوریٹلی ہر چیز کو دیکھتا ہے، جس سے انسان حیران رہ جاتا ہے. میں اس ویڈیو میں یہ کوشچن نہیں کرنے آیا کہ ون ورلڈ آرڈر سچ ہے یا جھوٹ. اس ویڈیو کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی کیا مینٹیلٹی ہے، وہ کس چیز کا خواب دیکھ رہے ہیں. ایک سینٹرل سسٹم، ایک گلوبل حکومت، ایک ایسی حکومت جو پوری ورلڈ کو کنٹرول کرے، ایک ایسی دنیا جہاں پر ہر بندہ ان کے بنائے ہوئے طریقوں پر عمل کرے، ایک ایسی پبلک جو صرف ان کے ڈیسیژنز کو فالو کرے جن میں ان کا کوئی رول بھی نہیں ہے. یہ صرف سوالات نہیں ہیں، اس 70 سے 100 سال کی پلاننگ کی ایک جھلک ہے. ہماری کہانی سٹارٹ ہوتی ہے لیٹ 1940s میں، جب پوری دنیا جنگوں سے تھک کر ایک پورے نئے نظام کی تلاش میں تھی. مگر کچھ لوگوں کے لیے یہ ایک موقع تھا، ایک ایسا سٹرکچر بنانے کا، ایک ایسا پلان کرنے کا جس میں پوری دنیا ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو فالو کرے. 1945 پوری دنیا خاموش ہو گئی، بمباری رک چکی تھی. ہر بندے کے دماغ میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ اب اس دنیا کا فیوچر کیا ہے. اس جنگ نے ملکوں کی عمارتوں کو گرا دیا، عمارتیں ٹوٹ پھوٹ گئیں، ہر جگہ تباہی ہی تباہی تھی. لیکن ایک چیز مضبوط ہو رہی تھی، یہ چیز کہ اگر دنیا کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر سے تیسری جنگ شروع ہو جائے گی. اور اسی سوچ نے اس وقت کے پاورفل لوگوں کو ایک ٹیبل پر لا کھڑا کیا، اور یہاں سے ون ورلڈ آرڈر کا پہلا خاکہ تیار ہونا شروع ہوا. 1945 سین فرانسسکو. یونائٹڈ نیشنز کا قیام ہمیشہ سے امن کا ایک پہلو سمجھا گیا، لیکن اصلی کاغذات یہ بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز صرف ایک امن کا پلیٹ فارم نہیں تھا، یہ ایک گلوبل فریم ورک کا پہلا لیئر تھا. UN چارٹر میں کچھ کلوزز ایسے تھے جو سرفیس پر سیدھے اور سمپل لگتے تھے، لیکن اندر سے وہ ایک گلوبل سینٹرلائزڈ اتھارٹی کا کانسیپٹ سیدھا کرتا تھا. کلوز 25، کلوز 39، سیکیورٹی کونسل کا سپر پاور سٹیٹس، اور سب سے بڑا رول پرماننٹ 5. یہ وہ 5 ملک تھے جو کسی بھی گلوبل فیصلے کو روک سکتے تھے. ایک نیشن، ایک ووٹ،
और दुनिया के 190 से ज़ायद मुल्कों की प्लानिंग एक साइड पर हो जाती थी। यूएन के बनने के बाद कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि अगर इस वर्ल्ड को कंट्रोल करना है तो कॉन्फ्रेंस हॉल से ज़्यादा छोटे प्राइवेट रूम्स में बैठना होगा, और यहाँ से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। 1947 रूम नंबर प्राइवेट, वाशिंगटन। ये वो मीटिंग थी जहाँ पोस्ट वार ग्लोबल इन्फ्लुएंस पर पहली नॉन गवर्नमेंट डिस्कशन हुई। पार्टिसिपेंट्स स्टेट ऑफिशियल्स नहीं थे, बल्कि पॉलिसी मेकर्स, एडवाइजर्स, बैंकर्स और कुछ ऐसे लोग जिनके नाम पब्लिक ने कभी सुने ही नहीं थे, वो सब इन चीज़ों में शामिल थे। इन्हीं डिस्कशन से एक नई सोच पैदा हुई, ऐसी पॉलिसी मैनुअल जो मुल्कों की किस्मत का रुख तय करे, लेकिन नाम किसी का ना है। इस सोच ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया, CFR, काउंसिल्स ऑन फॉरेन रिलेशंस। CFR की बुनियाद जंग के पहले रखी गई थी, लेकिन जंग के बाद इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया। CFR के डॉक्यूमेंट्स ये स्टेट करते हैं कि 1950s में इसके मेंबर्स सिर्फ स्कॉलर्स नहीं थे। यहाँ टॉप लेवल डिप्लोमेट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट्स और मीडिया एग्जीक्यूटिव्स आम बात थी। ये वो एरा था जहाँ पर वन वर्ल्ड ऑर्डर का पहला स्ट्रक्चर सामने आया। अब ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, इसके फ्रेमवर्क्स भी तैयार किए जा रहे थे। 1948 मार्शल प्लान अनाउंस होता है। इसे दुनिया एक ह्यूमैनिटेरियन पैकेज समझती थी, लेकिन एक्चुअल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि ये मार्शल प्लान एक जियोपॉलिटिकल टूल था। ये सिर्फ एक एड नहीं थी, ये एक डील थी, एक ऐसी डील जहां पैसा दिया जा रहा था, लेकिन उसके साथ पॉलिसी कंडीशंस भी अटैच थी। इस प्लान की वजह से यूरोप की पूरी इकोनॉमी सिर्फ एक डोर से कंट्रोल की जा रही थी। ट्रेड, एनर्जी, डिप्लोमेसी, सारी चीज़ें सिर्फ एक डायरेक्शन में चलने लगी, और ये वन वर्ल्ड ऑर्डर की फ्रेमवर्क का पहला ग्लोबल स्टेप था। 1950s में इंटेलिजेंस एजेंसीज की ग्रोथ एक आम बात नहीं थी। इन सब के बीच में कॉरपोरेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ। ये एजेंसीज ऑफिशियली अपने मुल्कों के लिए काम करती थी, लेकिन कुछ ऑपरेशंस इंटरलिंक्ड थे, कुछ मिशंस एक ही डायरेक्शन में थे और कुछ गोल्स शेयर्ड थे, वही ग्लोबल गोल्स जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। 1950s के एंड तक वर्ल्ड बैंक और IMF पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर एक लेयर्ड ग्रिप बन चुकी थी। लोन पॉलिसीज, रीपेमेंट स्ट्रक्चर्स, करेंसी स्टेबलाइजेशन, ये सब चीज़ें एक टेम्पलेट क्रिएट कर रही थी। एक ऐसा टेम्पलेट जो पूरी दुनिया के ममालिक को एक पॉलिसी डिपेंडेंसी में डाल रहा था। जब पैसा एक सिस्टम से आ रहा हो तो फैसले भी उसी सिस्टम की मर्जी के मुताबिक होते हैं। ये रूल हमेशा से सिंपल रहा है, और यहाँ से वन वर्ल्ड ऑर्डर का इकोनॉमिक फेज शुरू होता है। 1950s के ख़त्म होते होते दुनिया का नक्शा बदल रहा था। हुकूमत मजबूत हो रही थी, लेकिन कंट्रोल सेंट्रल हो रहा था। ग्लोबल कोऑर्डिनेशन बढ़ रही थी, लेकिन डिसीजन मेकिंग श्रिंक हो रही थी। एक ग्राउंड वर्क आगे जाकर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनने वाला था, जिसके बारे में सिर्फ कुछ ही लोगों को पता था। ये सब तो शुरुआत है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। 1960s पूरी दुनिया का सबसे रेस्टलेस दौर था। कोल्ड वॉर बढ़ रही थी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स तैयार खड़े थे, और मुल्कों के दरमियान इतना तनाव था कि एक चिंगारी पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती थी। इस ज़माने का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि कौन सबसे पहले मिसाइल चलाएगा, असल सवाल ये था कि इस स्टेज को कौन कंट्रोल करेगा। इसी टेंशन के बीच वन वर्ल्ड ऑर्डर का दूसरा फेज शुरू हुआ, एक ऐसा फेज जहां पावर नेटवर्क्स डीपन होना शुरू हो गए और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन एक हिडन सिस्टम की तरफ मूव होना शुरू हो गई। 1967 यूरोप के सेंट्रल रीजन में एक क्लोज्ड रूम मीटिंग होती है, बिल्डरबर्ग ग्रुप। इस ग्रुप का मकसद ऑफिशियली ग्लोबल डायलॉग था, लेकिन उनके इंटरनल नोट्स कुछ और बताते हैं। पॉलिसी कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव्स। ये वो लोग थे जो मीडिया, फाइनेंस, मिलिट्री और डिप्लोमेसी का सबसे ऊंचा लेवल कंट्रोल करते थे। बिल्डरबर्ग कोई सरकारी इदारा नहीं, ये कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं, फिर भी इसके फैसले दुनिया की इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायरेक्शन सेट करते थे। यहाँ डिसाइड होता था कौन सी पॉलिसीज़ पुश होंगी, कौन से क्राइसिस हाईलाइट होंगे और कौन से अलायंसेस बनाकर रखे जाएंगे। 1960s का लेट एरा टेक्नोलॉजी का पहला लीप था। कंप्यूटर्स शुरू हो रहे थे, डाटा रिकॉर्ड होने लगे और इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक नई सोच मिली कि कंट्रोल सिर्फ वेपन से नहीं, इंफॉर्मेशन से होता है। इसी एरा में ग्लोबल सर्विलियंस नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। एक्लॉन, सिग्नल इंटेलिजेंस, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मॉनिटरिंग। उनके रिकॉर्ड्स ये दिखाते हैं कि मॉनिटरिंग के नाम पर ग्लोबल डाटा डिक्शनरी डेवलप होती थी, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर मुल्क की रॉ इन्फॉर्मेशन का डाटा फ्लो करता था। जितनी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज्ड होगी उतना कंट्रोल आसान होगा। 1971 दुनिया का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एक दिन में बदल गया। 15th of August
1971 प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया। अब करेंसीज फिजिकल गोल्ड से लिंक्ड नहीं रही। उनका वैल्यू अब एक सिस्टम डिफाइन करेगा, एक सेंट्रल नेटवर्क, एक डायरेक्शन जिसे सिर्फ इकोनॉमिस्ट नहीं बल्कि पावरफुल फाइनेंशियल ग्रुप्स इसको गाइड करते थे। ये स्टेप पूरी दुनिया के इकोनॉमिक कंट्रोल को एक ग्लोबल जोन में शिफ्ट करता था। 1973 एक और पावरफुल नेटवर्क बनता है, ट्राइलैटरल कमीशन। इसके 3 जोन थे, अमेरिका, यूरोप और जापान, और इन सब का मकसद था ग्लोबल कोऑर्डिनेशन इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पॉलिसीज। ट्राइलैटरल कमीशन ने ग्लोबल इंटीग्रेशन को प्लान किया, एक ऐसा इंटीग्रेशन जिसमें मुल्कों का डिसीजन मेकिंग सेंट्रल हो जाए। उनके पेपर्स बार बार एक लफ्ज़ यूज़ करते थे, हार्मोनाइजेशन। पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करो, ट्रेड को हार्मोनाइज करो, मीडिया नैरेटिव्स को हार्मोनाइज करो। ये वो फेज था जहाँ पर ग्लोबल सिस्टम सिंक्रोनाइज हो रहे थे। 1973 ऑयल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को हिला दिया। प्राइसेस 4 गुना बढ़ गई, एनर्जी मार्केट्स कोलैप्स हो गई। मगर 2 साल बाद लीक डॉक्यूमेंट्स ने कुछ और ही बात बताई। क्राइसिस अक्सर नेचुरल लगती है, मगर जब एक क्राइसिस के बाद एक ग्लोबल रिकॉग्निशन हो तो सवाल उठता है। इस क्राइसिस के बाद एनर्जी पॉलिसीज सेंट्रलाइज हुई, ओपीईसी का इन्फ्लुएंस बढ़ा और वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स ने ऑयल ट्रेड को डॉलर से टाई कर दिया। डॉलर टाई का मतलब ग्लोबल डिपेंडेंसी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल और एक ऐसा इकोनॉमिक लेवरेज जो डायरेक्ट नहीं मगर परमानेंट होता है। 1980s सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्टिव हो चुकी थी, मीडिया नेटवर्क्स ग्लोबल बन रहे थे और पब्लिक ओपिनियंस को डायरेक्शन देना पहले से ज़्यादा आसान हो गया। मीडिया सिर्फ खबर नहीं देता, मीडिया पब्लिक थिंकिंग को शेप करता है। इसी एरा में क्रॉस नेटवर्क कोऑर्डिनेशन शुरू होती है। मेजर न्यूज़ चैनल्स, मेजर एजेंसीज, मेजर पॉलिसी मेकर्स, ये खुली प्लानिंग नहीं थी, ये साइलेंट सिंक्रोनाइजेशन थी। ये सिंक्रोनाइजेशन वन वर्ल्ड ऑर्डर का माइंडसेट फेज था, एक ऐसा फेज जहां दुनिया को स्टेप बाय स्टेप एक ही नैरेटिव, एक ही पॉलिसी डायरेक्शन, एक ही ग्लोबल आइडेंटिटी की तरफ पुश किया गया। अब अगला दौर उससे भी ज़्यादा पावरफुल होने लगा था। अब शुरू होती है वन वर्ल्ड ऑर्डर की कंसोलिडेशंस 1980 से 2008 तक का डिजिटल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। 1990 एक नए दौर का आगाज था। बर्लिन वॉल गिर चुकी थी, सोवियत यूनियन टूट चुका था और दुनिया एक ही सुपर पावर के नीचे आ रही थी। जंग का खात्मा सिर्फ एक अमन का मौका नहीं होता, कभी कभी ये सिस्टम को रीसेट करने का मौका होता है। कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ दुनिया में एक वैक्यूम पैदा हुआ और जहां वैक्यूम होता है वहां पर कोई ना कोई इसको बढ़ाने आता है। इस दौर में वन वर्ल्ड ऑर्डर की कंसोलिडेशन शुरू होती है। 1990 ग्लोबलाइजेशन को नेचुरल फिनोमेना के तौर पर प्रेजेंट किया गया, मगर डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन स्ट्रक्चर्ड थी, ये एक रोड मैप पर चल रही थी। ओपन मार्केट्स, क्रॉस बॉर्डर फंडिंग, ट्रेड एग्रीमेंट्स, टैरिफ्स का खात्मा। ग्लोबलाइजेशन को फ्रीडम के नाम पर इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन असल में ये एक इकोनॉमिक वेब बन रही थी, एक ऐसा वेब जिसमें मुल्क खुद से ज़्यादा इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के अंडरलाइंग सिस्टम्स को फॉलो करेंगे। जितना ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड होता गया उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी का लेवल भी इंक्रीज़ होता गया। जितनी डिपेंडेंसी बढ़ती गई उतनी ही डिसीजन मेकिंग पावर ख़त्म होती गई। 1993 यूरोपियन यूनियन ऑफिशियली फॉर्म होती है और 1999 में यूरो करेंसी इंट्रोड्यूस होती है। एक कॉन्टिनेंट, एक करेंसी और एक सेंट्रल बैंक। ये सिर्फ यूनिटी नहीं थी, ये कंट्रोल का मॉडल भी था। एक सेंट्रल अथॉरिटी, एक मॉनेटरी सिस्टम, एक यूनिफाइड लीगल स्ट्रक्चर। ईयू का मॉडल पूरी दुनिया का इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क का टेम्पलेट बन गया। 1990 इंटरनेट ओपन होता है, पब्लिक एक्साइटेड होती है, लेकिन इंटेलिजेंस नेटवर्क ये समझ चुके थे, डेटा इज पावर। इंटरनेट से लोगों को फ्रीडम मिली, लेकिन साथ ही इंफॉर्मेशन फ्लो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स के थ्रू होने लगा। सर्च इंजन्स, ईमेल सर्वर्स, डेटा स्टोरेज, यूजर बिहेवियर ट्रैकिंग। इंटरनेट ने लोगों को कनेक्ट ही नहीं किया, इंटरनेट ने लोगों की इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड भी करना शुरू कर दिया। 11 सितंबर 2001 वो दिन जिसने दुनिया को पूरी तरह बदल कर रख दिया। अमन के नाम पर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ सर्विलेंस एक्सपेंशन इस वक्त शुरू होती है। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन, एयरपोर्ट स्कैनिंग नेटवर्क्स। सिक्योरिटी के नाम पर हर मुल्क ने अपने लोगों का डाटा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, लेकिन ये सारा सिस्टम एक ग्लोबल इंटेलिजेंस पाइपलाइन के थ्रू गुजरता था। और यहाँ से वन वर्ल्ड ऑर्डर का डिजिटल सर्विलेंस फेस ऑफिशियली स्टार्ट होता है। 2000 मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली शिफ्ट होने लगती है। इराक, अफगानिस्तान, रीजनल अलायंसेस, रिसोर्स पाइपलाइंस।
मिडिल ईस्ट सिर्फ जंग का मकाम नहीं था, ये दुनिया की एनर्जी वेन्स का कंट्रोल पॉइंट था। एनर्जी कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल, ग्लोबल लेवरेज, ये वो फॉर्मूला था जो 2000s में एग्रेसिवली इम्प्लीमेंट किया गया था। 2001 ग्लोबल बैंकिंग और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई। स्विफ्ट सिस्टम, इंटरनेशनल क्रेडिट नेटवर्क्स, सैंक्शन फ्रेमवर्क्स। जब पैसा एक ही सिस्टम से आता है तो कंट्रोल भी वहीं से होता है। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस ने पूरी दुनिया को गिरा दिया, लेकिन इस क्राइसिस के बाद जो निज़ाम बना वो पहले से ज़्यादा इंटीग्रेटेड था। एक ही टेम्पलेट से रिकवरी प्लान्स बने, एक ही इंस्टीट्यूशन ने बेल आउट पॉलिसी को सेट किया, एक ही डायरेक्शन में रिफॉर्म्स पुश हुए। क्राइसिस अक्सर चीज़ें नहीं तोड़ती, क्राइसिस नए रूल्स लाती है। 2008 के बाद जो नया वर्ल्ड फाइनेंशियल ऑर्डर बना वो एक सेंट्रल डायरेक्शन में जा रहा था। 1980 से 2008 तक दुनिया को एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही नेटवर्क और एक ही इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरफ धकेला गया। अब दुनिया रेडी थी, इंटीग्रेशन हो चुकी थी, सिस्टम्स एक साथ फ्लरिश कर रहे थे, मगर एक स्टेप रह गया जिसने पूरी दुनिया को बदल देना था। और नेक्स्ट स्टेप एक बहुत बड़ा और बोल्ड स्टेप था। 2008 के बाद दुनिया पहले से ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो गई। फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ग्लोबल पॉलिसीज एक ही डायरेक्शन में चली और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती, कंट्रोल इनविजिबल और कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। अब पावर सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं थी, अब पावर यूएन सिस्टम्स में है जो पूरे सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं, जहां डाटा कलेक्ट होता है और जहां एल्गोरिदम डिसीजंस को गाइड करते हैं। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बैंकिंग, हर क्लिक, हर सर्च, हर पोस्ट रिकॉर्ड होता है। और ये सिर्फ पर्सनल डाटा नहीं, ये बिहेवियर, चॉइसेस और प्रेफरेंसेस का पैटर्न क्रिएट करता है। सर्विलियंस सिर्फ फोर्स से नहीं आता, ये कन्वीनियंस के नाम पर आता है। फास्ट पेमेंट्स, ईजियर आईडीज, स्मार्ट सिटी टेक, सब कुछ एक ही सिस्टम में फीड हो रहे हैं। हर एक लेयर देखने में तो हार्मलेस लगती है, मगर साथ में ये एक ग्लोबल कंट्रोल नेटवर्क बन जाती है। डिसीजंस, प्रिडिक्शंस और इवन पॉलिसी मेकिंग सब कुछ एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम से होता है। 2010 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने पूरी दुनिया के कंट्रोल का स्कोप बढ़ा दिया। एल्गोरिदम डिसीजंस गाइड करते हैं, रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, मार्केट्स और इवन पब्लिक सेंटिमेंट्स को मॉनिटर करते हैं। एआई सिर्फ एक टूल नहीं, ये डिसीजन मेकिंग का एक सेंट्रल पार्ट है, जहां इंसानी तौर पर काम होता है और सिस्टम्स की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF, यूएन एजेंसीज, G20, हर मेजर क्राइसिस का रिस्पॉन्स सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट होता है। ग्लोबल क्राइसिस, पेंडेमिक्स, फाइनेंशियल क्रैशेस, क्लाइमेट इमरजेंसीज, सब कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स डिमांड करते हैं और ये कोऑर्डिनेशन ही वन वर्ल्ड ऑर्डर का मॉडर्न फेस है। 2020 लॉकडाउन, हेल्थ पासेस, डिजिटल ट्रैकिंग, वैक्सीन रोल आउट्स, सब कुछ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम्स के जरिए। क्राइसिस के नाम पर कंट्रोल इम्प्लीमेंट होता है, हर डाटा पॉइंट मॉनिटर होता है, हर मूवमेंट रिकॉर्ड होती है और सिस्टम्स इतने इंटीग्रेटेड होते हैं कि पब्लिक नियरली अनअवेयर होती है। ग्लोबल ट्रेड, सेंट्रल बैंक्स एंड इंटरनेशनल करेंसी एग्रीमेंट्स अब एक ही डिजिटल इकोसिस्टम में ऑपरेट करते हैं। लोन, इंटरनेशनल सेंसेशन सब एक ही सिस्टम से मैनेज होते हैं। जहां पैसा कंट्रोल होता है वहां पावर होती है और अब पैसा, इंफॉर्मेशन और पॉलिसी सब एक ही नेटवर्क में बाइंड हो चुके हैं। 2008 से लेकर आज तक वन वर्ल्ड ऑर्डर एक विजिबल नहीं लेकिन पावरफुल और ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर में इवॉल्व हो चुका है। डिसीजन सेंट्रलाइज्ड हैं, सिस्टम्स इंटीग्रेटेड हैं और पब्लिक पार्टिसिपेशन लिमिटेड है, मोस्टली ऑब्जर्वेशन तक। अब अगला फेस है सबसे इंटेंस, जहां हिडन एजेंडाज, सीक्रेटिव अलायंसेस और ग्लोबल मैनिपुलेशन का एक पीक सामने आता है। द फाइनल आर्किटेक्चर ऑफ वन वर्ल्ड ऑर्डर। सदियों तक ये सिस्टम शैडोज में ऑपरेट करता रहा। गवर्नमेंट्स चेंज होती रहीं, वॉर्स आती रहीं, टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन आर्किटेक्चर वो हमेशा सेम रहा। आज हम उस आर्किटेक्चर के अंदर जा रहे हैं, उस फाउंडेशन के अंदर जहाँ पे वन वर्ल्ड ऑर्डर सचमुच में ऑपरेट होता है। अगर आप सरफेस पर देखें तो लगता है कि दुनिया अलग अलग गवर्नमेंट्स पर काम करती है, मगर असली स्ट्रक्चर 3 लेयर्स में डिवाइड होता है। लेयर नंबर 1 पब्लिक गवर्नमेंट्स, वो जो न्यूज़ में आते हैं, जो इलेक्शंस लड़ते हैं और स्पीचेस देते हैं। लेयर नंबर 2 ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WEF, यूएन एजेंसीज, उनकी पॉलिसीज, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी गाइडलाइंस नेशंस को शेप करती हैं। लेयर नंबर 3 इनविजिबल गवर्नेंस, डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग ट्रीटीज,
اور کلوز ڈور نیگوسیشنز۔ یہ وہ لیئر ہے جہاں کوئی کیمرہ نہیں ہوتا، کوئی ووٹ نہیں ہوتا، کوئی پبلک انفلوئنس نہیں ہوتا۔ یہ ٹاپ لیئر ون ورلڈ آرڈر کی اصلیت رکھتی ہے۔ سب سے ڈینجرس چیز یہ نہیں کہ ڈیسیژنز کہاں ہوتے ہیں، سب سے ڈینجرس چیز یہ ہے کہ ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا۔ ایسے ایگریمنٹس جو پبلک ڈاکیومنٹس میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، ایسی میٹنگز جن کے منٹس آفیشیلی ریکارڈ نہیں ہوتے، ایسی پالیسیز جو لیگلی انفورسیبل ہوتی ہیں مگر لیگلی ویزیبل نہیں ہوتی۔ ہسٹری کے ہر ایک ایرا میں ڈاکیومنٹس ہمیشہ سے مسنگ رہے، لیکن 21 سینچری میں مسنگ ڈاکیومنٹس ریپلیسڈ ہو گئے۔ پریڈکٹیو گورننس، یہ وہ ٹرم ہے جو پبلک ووکیبلری کا کبھی حصہ نہیں بنا، لیکن یہی 21 سینچری کی ریئل گورننس ماڈل ہے۔ الگوریدمز پبلک سینٹیمنٹس پریڈکٹ کرتے ہیں، اے آئی انریسٹ، اکانومک شفٹس، ایون الیکشن آؤٹ کمز کیلکولیٹ کرتے ہیں، اور پھر پالیسی میکنگ اس حساب سے شیپ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب گورننس ری ایکٹیو نہیں، پرو ایکٹیو ہے۔ اب ایکشنز کرنے سے پہلے سسٹم آپ کا بیہیویئر پریڈکٹ کر لیتا ہے۔ ہر گلوبل کرائسس ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اور ہر ٹرننگ پوائنٹ پر ون ورلڈ آرڈر اگلا فیس امپلیمنٹ کرتا ہے۔ فائنینشیل کرائسس، ہیلتھ کرائسس، انرجی کرائسس، وار کرائسس، کلائمیٹ کرائسس، ان کرائسس کی بنیاد پر نئے پالیسیز بنتے ہیں، نئے آئیڈیز، نئے سسٹمز انٹروڈیوس ہوتے ہیں، اور پبلک انہیں ایکسیپٹ کر لیتی ہے کیونکہ ایٹماسفیئر ہی ایمرجنسی کا ہوتا ہے۔ انرجی ایکسیپٹنس، یہی ریئل فارمولا ہے۔ اب آنچ بہت تیز ہو چکی ہے، ایٹماسفیئر تھک ہو چکا ہے، اور اب وہ ایلیمنٹ سامنے آئے گا جو اس پورے سسٹم کو ایک تھریڈ میں جوڑتا ہے۔ یہ سسٹم کوئی کانسپریسی نہیں، یہ کیئرفلی پلانڈ انٹیگریشن ہے۔ فائنینشیل کنٹرول، گلوبل سرویلنس، ڈیجیٹل آئیڈینٹی، ہیلتھ گورننس، ریسورس ایلوکیشن، کانفلکٹ مینجمنٹ، الگوریدمک پریڈکشنز، انٹرنیشنل ٹریٹیز، یہ سارے پلرز مل کر ایک یونیفائڈ آرکیٹیکچر بناتے ہیں، اور ہر آرکیٹیکچر کا ایک کور ہوتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے انفلوئنشل پاور ہبس ایک ماڈل فالو کرتے ہیں، ایک ایسا ماڈل جو پبلک پالیسیز کو سٹینڈرڈائز کرتا ہے، ایک ایسا ماڈل جو گلوبل ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے، ایک ایسا ماڈل جو ڈیپلی انٹیگریٹڈ ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کون کنٹرول کر رہا ہے، تو جواب سمپل نہیں، ایک پرسن نہیں، ایک کنٹری نہیں، ایک انسٹیٹیوشن نہیں، پورا کنٹرول ڈسٹریبیوٹیڈ ہے مگر ڈائریکشن سینٹرل ہے، اور اس کا نام ہے ون ورلڈ آرڈر۔ ہم 2025 میں کھڑے ہیں۔ ڈیجیٹل آئی ڈیز، بائیو میٹرک ڈیٹا بیسز، سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسیز، اے آئی گورننس، گلوبل کرائسس رسپانس ایگریمنٹس، جیو پولیٹیکل الائنمنٹس، سب کا رجحان صرف ایک طرف ہے، سب ایک طرف کنورج کر رہے ہیں۔ یہ کنورج ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ فیوچر آرکیٹیکچر کا فائنل سٹیج ہے۔ اب سوال یہ نہیں کہ ون ورلڈ آرڈر ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں، اب سوال یہ ہے کہ اس گلوبل سسٹم میں آپ کا کیا رول ہوگا۔